Ladies and gentlemen, it's a privilege to have on the stage with us Dr. Alok Mehta, who is an Indian journalist, TV broadcaster, and writer. And in 2009, he received the civilian honor of Padma Shri from the Government of India. His work has focused on issues of social welfare, including education of minorities and healthcare facilities. And I have the proud privilege of inviting Dr. Alok Mehta for his address. Respected Shri B.P. Singh ji, Shri Bhuneshwar Kalita ji, Shri Vishwapati Trivedi ji, Shri S.N. Srivastava ji, writer Ajit Jha ji, Keshwani ji, हमारे J.K. Jain, Khanna ji, Nehal ji, all friends are here, and especially because I'm extremely sorry I was also late, because I thought that it's just I'm going as in the audience, maybe 5 minutes late I will reach there. So first I would like to say sorry for that. And especially on this subject, Shri B.P. Singh ji, when he was there in Sikkim, earlier as a Home Secretary, what he did, so I wanted to listen him, because in IIC also, or whenever we meet, I discuss with him so many economic issues. And same time, Bhuneshwar Kalita ji, since Rajiv Gandhi days, he knows him as a youth Congress leader from Northeast. We are missing Mr. Riju ji. In fact, I was asking all the time Ajit Jha ji कि Riju ji आ रहे हैं Northeast से, कौन तो मेरा कलिता जी तो होंगे ही. Because और then Mr. Alfonso चले गए शायद, उनको जाना पड़ा. जोड़ते हैं, इसीलिए सबसे बड़ी बात ये, दिस इज द रियल इंडिया. सबसे पहले केरल के साहब हमारे सांसद ने बोला, वी फील प्राउड, दिस इज द रियल इंटीग्रेशन. एंड इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, in 40 years back when I went to Arunachal, that's why I'm remembering with B.P. Singh ji, Bishan Narayan Singh ji. He was governor even in Assam, and in the whole region also he became for time being for all 7 states. He invited me and few 4 or 5 senior journalists. Mr. Balesh Agarwal was also there from Bihar. I always give credit to eastern people because they contributed a lot. Not only Arunachal, at the time we went to Arunachal when we were talking about Vishwapati ji. And for Vishwapati ji also, I think we have more than 40-45 years lessons. And because of his father's honesty, those days, I just asked, just remembering him, today is the death anniversary of Shri Radhindra Trivedi ji. We used to go and discuss with him how honesty in the bureaucracy can work. That's why the results what we are watching, discussing all over India, we need honest people. And I always say, maybe in white collar job, maybe I may be dishonest, but not everybody. In politics or in bureaucracy or in different field in society, more 90% are honest, but because of few symbols, we feel that our society is corrupt, everything, nothing happened. And that's why I want to give credit to Ajit Jha ji, क्योंकि पहले ये हिंदी में किताब लाए थे. उस समय तो कोई फंक्शन हो नहीं पाया मेरा ख्याल है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक. तो तब इनको कहा भी गया कि भाई नॉर्थ ईस्ट में, जबकि मैंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में भी हिंदी जितनी अच्छी है, रिजू जी और भुवनेश्वर कालिता जी जितनी अच्छी बोलते हैं, कई बार हम लोग शायद गड़बड़ कर जाए. खासकर रिजू जी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है. खन्ना जी तो बहुत लोगों को सबसे जानते ही हैं. तो इस तरह के लोगों ने ही इसको बिल्ड किया है. जैसे जो बाद में गए, बिशन बाबू ने उस समय कुछ बनाया, विश्वपति जी जब इंडियन अलायंस में बने, सब कुछ ये संभाल रहे थे, तब उस एरिया में क्या हो सकता है. बाद में जाके सिक्किम का एयरपोर्ट आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद देखा. तो मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में स्टार्टिंग विथ बागडोगरा उतर के पूरा बाय रोड अरुणाचल, असम, किन किन स्टेट में उनको घूमना था. जब बिशन बाबू थे कोई साधन ही नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं था, हवाई जहाज नहीं थे, कैसे पहुंचे. पूरा 1 हफ्ता तो हमें ईटानगर पहुंचने में लगा था, बीच में रुकते रुकते रात को सर्दी में. और वो भी एक आश्चर्य की बात थी.
उस समय मैंने जब कुछ अरुणाचल पर लिखा तो बाद में बच्चों के जो 8th क्लास के बच्चों के लिए उस समय काम आया कि जहाँ सूरज की पहला, अरुणाचल प्रदेश है जहाँ सूरज की पहली किरण दिखती है। इस हम सुबह निकले तो 3 बजे ऐसा लगता था कि दोपहर 9-10-11 बजे आए, और लगता था कि रात को देखें कोई खतरा नहीं, जेल ही नहीं था वहाँ पर। पता नहीं अब है कि नहीं, अरुणाचल में जेल ही उस जमाने में नहीं होता था, कहते कुछ क्राइम ही नहीं है, अब तो कुछ आ गया। एप्पल वहाँ पर कितना होता है, आज उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एयरलाइंस वहाँ जुड़ रही हैं, तो उसका क्या लाभ होगा। मेरी कलीग और हमारे साथ टीवी का काम करती है, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी वैली ऑफ डेथ, मानसी यहाँ पर है, काफ़ी समय से उन्होंने काम किया। उस समय में टी गार्डन्स में काम करने वाले लोग कितनी तकलीफ में रहते थे, आज उनकी कैसी स्थिति बदली। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कह के ये कहूँगा कि अजीत झा जी ने जो कोशिश की है कि क्या डिफरेंट फेस उसका हुआ है, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट बदला है, क्या योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुँचे। एंड त्रिवेदी जी राइटली सेड, बिकॉज ही आल्सो वर्क दो में नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, और अभी भी वो जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग कमीशन में भी कर रहे हैं, तो टू प्लान, बट इम्प्लीमेंटेशन तो वही होगा ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेशन, वो कितना अच्छा हो, प्रधानमंत्री कितना ही चाहे। अभी वाटरवेज की बात हो रही है, आई रिमेंबर विद्याचरण शुक्ला जी वॉज ऑल्सो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, तो कई लोग पूछते थे कि अरे ये मिनिस्ट्री, बट बिकॉज इट वॉज, वो कहते देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, नर्मदा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, वहाँ की योजनाएं करना है। आज गडकरी जब वो काम करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, तो हमें लगता है कि ट्रेडिशन में उस समय तो हमारी इकोनॉमी नहीं थी, वहाँ पैसा नहीं था। आज इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। आप ये मत समझिए कि 2-4 लोग यहीं पर जो पैसा लगा रहे हैं वो तो विदेश में लगा रहे हैं। हमारे कई मित्र, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ इसीलिए, जब लोग कहते हैं ना उनके भारत में पैसा लगा, उनका पैसा भारत में बाहर लगा है। हिंदुजा ब्रिटेन के सबसे बड़े पूंजीपति है, वहाँ के कोई बड़ा पूंजीपति उतना बड़ा नहीं जो हिंदुजा है। और ऐसे ही हमारे और भी उद्योगपति बाहर लगा, लेकिन बाहर से भी पीपल लुकिंग फॉर ईस्ट, ईस्ट मीन्स इंडिया नाउ, होल ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट स्पेशली, फ्रॉम अरुणाचल टू नागालैंड, फ्रॉम मणिपुर, Mizoram, Tripura, how peaceful and how people are contributing. That's why since last 5 years, I have not seen any allegation against Rijuji. I want to give credit to him because working in a different ministry, now he is the Minister of Law. Today he is, because suddenly went to, that's why he is not here. But I feel that how sincerely he is working in sports, other field. Any ministry where he worked also contributed for Northeast. बल्कि उस समय मेरा खाली कलिता जी का एक प्रोग्राम था, इतना मैंने सब जगह कहीं जाना रुका हुआ था, बट कोई एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, और वो आए भी। तो इसलिए आपस में हम लोग कैसे देश में किसी भी कठिनाई में काम कर सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट हमको सिखाता है, बिहार सिखाता है, मध्य प्रदेश सिखाता है, देश के केरल सिखाता है। कोई पॉलिटिक्स से हट करके यदि हम सोचें तो बहुत कुछ है और हो सकता है और हो रहा है। और ये बुक मेरी उम्मीद है कि मैं जैसे बार बार इनसे भी कहता हूँ कि, और हमने पहले भी कहा, त्रिपुरा में भी इनके मित्र हैं, हमने कहा कि भाई उनको इंडिया में और लोगों को और ज़्यादा बताने की जरूरत है। मीडिया में रहते हुए कहता हूँ, ठीक है, मैंने अपने अखबारों में क्या किया नहीं किया नहीं, और ज़्यादा लोगों को, नई जनरेशन को पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है। वो डॉक्यूमेंट्री के जरिए हो, वो किसी और काम के जरिए हो, लेकिन यदि वो नहीं होगा तो लोगों को कहेंगे वो दूर है, वहाँ पहले आप जानते हैं आप क्या कहते थे, चीनी है। मणिपुर की लड़कियों को आई यूज्ड टू फील वेरी बैड, चाइनीज टाइप का दिखेगा ना, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं तो उनको कहेगा अच्छा वो चीनी जैसा ना कुछ। आज कोई नहीं कहता, आज कोई नहीं कहता। तो ये जो हमारी इंटीग्रेशन हुआ है, जिसके लिए एक 2-3 जनरेशन ने काम किया है, वट एवर वी कैन डू फॉर अवर नेक्स्ट जनरेशन, इट विल बी ग्रेट कंट्रीब्यूशन। एंड सच बुक विल ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट नॉर्थ ईस्ट, create more awareness about the programs. At least they should release in Guwahati and Arunachal Pradesh, other states also, because people, they should aware about it. Hindi and English both edition. Same thing. We have prepared some short film. We have the Northeast television channels and the private channels, but especially for such program, people think, okay, this is a job of the government, and the government, sorry to say, now say कि भाई इसमें पैसा कितना आएगा, वहाँ भी प्रसार भारती में भी यही कहा जाता है। जैन साहब को मालूम होगा, वो सरकार में रहे हैं, इंदिरा गांधी से लेके और राहुल गांधी तक।
तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी जब हम लोग ऐसे ही चाहे आयोजन हो, लेकिन इससे कितना प्रमोट हो, मैं तो इसलिए नमन करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं खाली सुनने आया था लेकिन बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।